Welcome, students. I'm going to teach you about our constitution. First of all, our constitution here means the Indian constitution. The question is arises that why we need constitution. Second, we are going to understand the meaning of constitution. Third, role of constitution, etc. First of all, we are going to start our constitution. That is, you know, the constitution is needed for to govern a country. There are many of the country who are the democratic country in the world. They have the constitution. Some countries have the written constitution, and some countries have unwritten constitution. Like you have England. You have England as a England is also a parliamentary form of government which has unwritten constitution. Unwritten constitution. But when we talk about, and there are several countries like the Switzerland, like the USA, and we have India, Switzerland, we have USA, India. These countries have the written constitution. The main thing is our constitution. It is a very vast, very lengthiest constitution in the world. So the question arises, the meaning of the constitution. Constitution is a book which has set of rules and regulation how the country should be governed. It is as we know that India is a very vast country. They have many religious differences, region differences, language differences, caste differences, and many of the differences are found in our country, that is India. So to bound, we can say that to bound the differences we need a written document. To bound the differences, we need a written documents. What are the differences? Differences, we have the religious differences. We have the regional differences. We have many things. Apart from this, we have language differences. And we have something like the caste, the resources. So it is a very vast country. People are different from the other people. We have the socialist differences. We have the economical differences. Some are the poor and some are the very much rich. So how can the rights, how can the people live in a country with have specific rights? So these of the things are in the constitution. So now we are going to talk about what is the need of constitution. So students, are you understand meaning of the constitution? If you have any question related to the meaning of the constitution, you can ask me, okay? Should I move to the need for the constitution? For meaning of the constitution, you can write constitution is a book in which rules and regulation are written. You can say that constitution
is a book in which rules and regulations are written. And why these rules and regulations are written? To govern a nation or a country, you can say that. To govern a nation or a country. So this is a book, Constitution is a book. Book of what? Book of the set of rules and regulations. Constitution is a book in which we have the rules and regulation. And what is why these rules and regulation are for? These rules and regulation are for to govern the nation. How you can govern the nation, how the people have their rights, how the rights are, accumulated and collected in one place. So these all things you are getting in the Constitution. That is our Constitution or Indian Constitution. Okay? So you can write down these things. Now I have already told you about something related to need for Constitution. What is the need? So I can also write down what is the need for Constitution. Like, first of all, we have the differences. India is a vast country. You can say India is a diverse country. India is a diverse country in which there are many people of the different, people have differences in the religion, region, color, gender. We have the differences in the language. So we have so many differences. India is a vast country. We have so many differences. How these differences, how the diverse country is going to live with a unity, and how this unity can form, these all the things are written in the Constitution. Okay, so that is why we need for the Constitution. In Constitution, we have found that all peoples are equal before the law. This Constitution says in the fundamental rights of Article 14. This Constitution say about the people who are belonging to the different community, who have the different religion, they are belonging to the different parts of the India. They have the different colors like black and white, and the brown colors, the gender, male or female, or the transgender, the language differences, so many languages in our country. So how these different people are living in the same place, and how their rights, how their, how their ritual, how their religions can be protected. These all things are written in the Constitution. So that is why we need for the Constitution. The second thing we can write that the citizens' rights are protected. Citizens' rights are protected by the Constitution. By the Constitution. So students, you get these 2 points. I have so many points. One by one, I can tell you what are why we need for the Constitution. So these are the 2 basic points, and I can move further. So may I rub this? Are you all getting points? Any query you can ask me. If you are not able to understand anything from these, if you wanting to translate in Hindi, I can translate it also. So basically, okay, I move to the Hindi. What happened कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? है हमारा संविधान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो एक बहुत बड़ा संविधान है. क्यों बड़ा संविधान है? इसको कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा जो संविधान लिखा गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है. वो सबसे ज्यादा जो क्या नाम है लेंथीएस्ट, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आप कंपेयर करें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो बहुत छोटा है. उसमें आई थिंक बहुत लेस 7 या 8 ही सिर्फ आर्टिकल्स हैं और उसको ही एलेबोरेट किया गया, लेकिन बहुत छोटे फॉर्म में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनिशियली जब बना था उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे, और अभी जो है 400 प्लस हो गया आर्टिकल्स. अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, चेंजेस भी हुए हैं. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. अब मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का?
कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरीके से सिटीजन्स को गवर्न किया जाएगा, किस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, किस तरीके से पूरा जो हिंदुस्तान है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट आए, एक गवर्नमेंट आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, जरूरत के मुताबिक, लाइक एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो है 1951 में इसको क्या नाम है इम्प्लीमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद आप देख लीजिए तो 70 इयर्स हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 70 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को बदलने के लिए भी एक रूल बनाया गया है जिसे हम अमेंडमेंट, आर्टिकल्स ऑफ अमेंडमेंट कहते हैं। उस अमेंडमेंट के जरिए, उस बदलाव के जरिए आप कुछ चीजों में संशोधन या बदलाव कर सकते हैं नीड के, जरूरत के मुताबिक। और वो बदलाव ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए भी पार्लियामेंट में क्या नाम है आपको बिल बिल डाला जाता है, उस बिल को फिर पास किया जाता है, तब जाकर के वो कोई एक्ट बनता है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि तब जाकर के उसको चेंज कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई आया डिक्टेटरशिप की तरह कि आप आए और काट दिया और कहा ऐसे नया रूल होगा, ऐसे कुछ नहीं है। उसके लिए एक बैठक होगी पार्लियामेंट में, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास हो गया तो एक लंबा प्रोसीजर है। तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बुक है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है। जरूरत क्या पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, जरूरत क्यों पड़ी या क्या जरूरत है? ये जरूरत है हमारे देश में आप जैसे देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनका मजहब अलग है, जो अलग अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कलर अलग है, जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जेंडर में भी अलग है लोग। लैंग्वेज स्पीकिंग सबसे ज्यादा जो महत्व देने वाली चीज है, रिलीजन रिलीजन और एक ये जो लैंग्वेज, ये दो चीजें जो है ये सबसे ज्यादा जो कहीं टेंशन अगर पैदा करती है किसी कंट्री में तो रिलीजन और लैंग्वेज। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 के बीच में वो जितने भी माइनॉरिटीज हों, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या जो भी चीजें हैं जो लगता था कि इनके साथ जो है गलत हो रहा था, उन सबको फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया है और कह दिया गया है ये ऐसे राइट्स हैं। पार्लियामेंट जो है वो क्या है बदलाव कर सकती है, पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल्स में बदलाव कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलाव नहीं कर सकते, उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। ओके, so now I move to the next point, why we need constitution. So going to any question you can raise that and ask me. कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। Third point. What you think? What is the third point? We can write. Just give me star. Yeah. ऐसा कुछ आप देख रहे होंगे न्यूज में, हर जगह यही छाया हुआ था, ब्लैक लाइफ मैटर। ऐसा आपने देखा न्यूज चैनल्स में? आई थिंक आपने देखा होगा ब्लैक लाइफ मैटर। अभी यूएसए में एक राइट हो गया था जिसमें ब्लैक को मार दिया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि कलर डिफरेंसेस की वजह से ही तो हर जगह लोग यही चिल्ला रहे थे ब्लैक लाइफ मैटर्स, ब्लैक लाइफ मैटर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्शन देता है हम लोगों को। मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ भी कलर डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो नहीं किए जाते हैं लोगों के बीच में। वो अच्छी चीज है कि हम लोग समझदार हैं, हम समझते हैं कि कोई जो है वो बड़ा नहीं है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, सब वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक ही है, या हमारे सब जो लॉ के नजर में सब एक ही है। वो अच्छी बात है, हमारे डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन कलर डिफरेंस में अगर हम देखें तो कलर डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। हर कोई एक जैसा समान नहीं है, लेकिन हम उसको राइट देते हैं, हम उनको हक देते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लाइक अभी रिसेंट वाक्य, तो आर यू क्लियर? आपका पॉइंट क्लियर हुआ? आपका ये पॉइंट लाइक जो है कलर डिफरेंसेस भी होता है, हमारे देश में नहीं हो रहा, ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे देशों में हो रहा है ये ब्लैक। सर आप यू टोल्ड to be found by some victims। तो क्या होता है कि हमारे इंडिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको सजा सुना सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ ये इनजस्टिस। आपका ये सवाल था कि
क्या इंग्लैंड में तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो लोग कैसे पता करते होंगे कि ये गलत हुआ है या ये सही है? यही सवाल था ना आपका? यस सर, क्योंकि अगर 10 लोग बोलेंगे तो 10 तरह की बातें बोलेंगे। कोई बोलेगा कि हाँ, इसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, कोई बोलेगा कि ओके ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट। मैं समझा, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो रिटन नहीं है, तो फिर वो लोग कैसे समझते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है? देखिए मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड जो है उसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं, अगर उसको लिखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो इंग्लैंड का ही हो जाएगा। इंग्लैंड का मामला किस तरह, अगर मैं आपको ले चलूं थोड़ा ऊपर की तरफ, तो इंग्लैंड का मामला जो है रूल ऑफ लॉ की तरफ से आया है। रूल ऑफ लॉ जो हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है, रूल ऑफ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की तरफ से आया। अब देखिए इसमें क्या है इस मामले में कि इंग्लैंड का जो है 14th सेंचुरी से ही, 1400 शताब्दी से ही रूल ऑफ लॉ था। उनके पास रिटर्न कुछ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह बाकायदा किताब है जिसके फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इनके पास क्या है कि काफी सारे अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। रूल ऑफ लॉ का अलग फॉर्म है, कोई और चीज इनजस्टिस हुआ होगा उसका अलग फॉर्म है, या किसी के साथ 15th सेंचुरी में कोई बात हुई होगी उसके मुताबिक उसको कैसे सजा सुनाया गया था उसको भी लिखा जाता था। उसके उनका जो है ना, उनका जस्टिस जो है किस तरीके से दिया जाता है पिछली प्रीसीडिंग्स को देख करके कि उस वक्त क्या हुआ था, उसके विषय में जज ने क्या फैसला किया था, तो वो सारी चीजें के हिसाब से देते हैं, लेकिन उनका एक कलेक्टेड फॉर्म नहीं है। इंडिया में कलेक्शन है ना कि यही रूल्स है, इसी किताब के द्वारा सजा सुनाई जाएगी। अगर कुछ इसमें ऐड करना है या उसमें कुछ चेंज करना है तो वो उस किताब में जाकर शामिल हो जाएगी। लेकिन इनके पास ऐसे स्पेसिफिक है जिसको, लेकिन इनके पास जजमेंट्स होते हैं। रूल ऑफ लॉ का जो सेट ऑफ रूल्स बनाया गया था पहले जमाने में, उनकी पास चीजों को लेकर के तब जाकर के उनका एक जजमेंट किया जाता है। समझ में आया आपको? पॉइंट क्लियर है आपका? ओके चलिए, तो मैं मूव कर रहा हूं दूसरी तरफ। थर्ड पॉइंट इसका देखिए। यस सर। हाँ ओके, चलिए मैं थर्ड पॉइंट बता दूं। हमें जरूरत इसलिए भी पड़ी कि अब चलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मान के चलिए कोई एक पार्टी है, वो मेजोरिटी सीट प्राप्त करती है और उसके बाद जाकर के अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। अब देखिए गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया उसने, तो उसके पास तो फुल पावर है, वो जैसे चाहे उस तरीके से उस कंट्री को चला सकती है। लेकिन बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारे लोग जो अगर आप नीचे लेवल पे देखें तो उसका मिस यूज भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए इंग्लैंड में होता है कभी कभी मिस यूज पावर का, क्योंकि उसके पास जो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके का नहीं है कि वो लोग जाकर के डायरेक्ट फाइल कर सके कि हमारे साथ ये इंजस्टिस हुआ। तो उसको ऐसा नहीं है कि उनके साथ होता है, वो लोग फाइल भी करते हैं, उनको जजमेंट, उनको जस्टिस मिलता भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल पाता है। इसकी वजह यही कि उनके पास एक कलेक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक कलेक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारे पास कलेक्टेड फॉर्म में लिखे होने की वजह से हमें यह फायदा मिलता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट जो फॉर्म पार्टी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रूलिंग पार्टी जो भी होती है, वो जो है क्या कर पाएगी, मिस यूज नहीं कर पाएगी। तो यू कैन राइट इट रूलिंग पार्टी, हम लिखते चलिए रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मीन्स द गवर्नमेंट या द पार्टी विच इज इन पावर। द रूलिंग पार्टी कैन नॉट misuse रूलिंग जो पार्टी है वो क्या कर पाएगी, मिसयूज नहीं कर पाएगी अपने पावर का। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि कोई भी आपका वायलेशन होता है राइट्स का, तो आप जो है हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी मिसयूज नहीं कर पाएगी। तो इससे एक और पॉइंट निकल करके आ गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द सेफ गार्ड ऑफ द सिटीजन। तो क्या हो गया, ये हमारा जो है इट्स मीन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, सेफ गार्ड हो गया। किन के लिए?
सिटीजन्स के लिए कि सिटीजन्स के राइट जो है वो वायलेट नहीं होंगे। सो तो आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको? ओके, नाउ वी मूव फर्दर। चलिए अब हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड, क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कोई सजा सुनाता है तो आप उसको जो है दोबारा रिपील कर सकते हैं, आप उसको दोबारा फाइल कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उसके जजमेंट से तो आप उसको हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अभी एक जो है निर्भया केस का जो मामला हुआ था तो अब जाकर के फांसी हुई, उसमें क्या मैं ये बता रहा था आपको कि हो सकता है कि एक लोग को सेम क्राइम पे मर्डर हो जाए, एक लोग को सेम क्राइम पे जो है फांसी की सजा सुना दिया जाए, लेकिन उसका चीज किसके ऊपर जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी को जजमेंट दे दिया कि इसको फांसी की सजा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उससे बड़ा तो कोई जज हो ही नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगर उसको फांसी सुना देती तो सिर्फ एक ही शख्स बचता है जो उसको फांसी से रोक सकता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर एक पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है कि वो उसकी सजा को जो है कम कर सके या उसकी सजा को मोड़ सके। मोड़ने का मतलब ये है कि फांसी के बजाय उसको चेंज करके उम्र कैद की कर सके। तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, जुडिशियल पावर, बस वही एक कर सकता है। उसके अलावा जो जजमेंट दिया गया है उस पर ही काम होगा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट चेंज कर सकता है हाई कोर्ट का जजमेंट चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो चेंजेबल नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर एक चीज होती है तो उसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल हो सकता है कि सर ये जो जजमेंट आया था आपका, एक बार इस केस को दोबारा फिर से रिव्यू कर लीजिए, और दोबारा अगर रिव्यू करके आया तो उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं आप आगे और बताऊं आपको फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई ये सारी बात? मैं आपको इस बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ये मेरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन। आगे फीचर के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, प्रेम्बल के बारे में धीरे धीरे पहुंचेंगे। चलिए तो फीचर्स पढ़ते हैं हम, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा इसमें, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा है, ओके। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज ये हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी जब उसको लिखा गया है इसके अंदर आर्टिकल्स इतने ज्यादा हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, तो एक बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और सब दूसरे कंट्री के मुताबिक, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कंपेयर किया जाए। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खास बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर ज्यादातर जो है क्या नाम है आपका इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है काफी सारी चीजें, तो काफी सारी जगहों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। तो सबसे खूबसूरती की बात इसकी यही है कि पहले सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, उसके अंदर से जो जो बेस्ट पॉइंट थे, जो बेस्ट लगा, उस चीज को फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे बीपीएसपी हो कि स्टेट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो कि इंसान क्या नाम है सिटीजन्स को राइट्स तो मिल गए हैं तो उसके साथ साथ उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, ड्यूटीज भी होना चाहिए। तो क्या किया गया है, डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं बोरो। स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो जाती है तो स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा। बोरो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस असेंबली ने क्या किया कि बहुत सारे उसको क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर बन चुके थे उनको रीड आउट किया, उनको पढ़ा, एनालाइज किया, उसको देखा कि क्या ये सही जा रहा है, अब तक क्या सही हुआ है इस आर्टिकल्स को लेकर के। तो उस तरीके से उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीजों को रखा गया, ठीक है। दूसरा,
हम तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा भी मैंने आपको बता दिया कि क्या फायदा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ एक किताब पढ़नी है, इंग्लैंड की तरह नहीं कि सबके जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, रूल ऑफ लॉ अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो क्या नाम है 14th सेंचुरी से जो जजमेंट आ रहे हैं उन सारे पे देखना पड़ेगा, क्वीन विक्टोरिया के जमाने में क्या क्या जजमेंट दिए गए थे, कौन कौन से केस थे उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना सारा कोई झंझट नहीं, हमारे पास एक इकट्ठा किताब दे दिया गया कि यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके लिए वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है कि पार्ट 3 में आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में आपका जो है डीपीएस पॉलिसीज है। तो इससे आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अगर कोई सवाल करे तो उसको बता सकते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर कहा गया, क्या हमारे राइट्स हैं और क्या हमारी ड्यूटीज हैं। तो हमारे पास एक कलेक्टेड फॉर्म में है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये अच्छी बात है। और फीचर्स क्या हो सकते हैं उसको रब करने के बाद बताता हूं मैं। मैं सब कर रहा हूँ, सवाल अगर बीच में आए तो हो जाएगा हमारा ये भी टॉपिक, ठीक है। अब इस फीचर्स का कॉन्सेंट्रेशन करेगा। अरे एक और चीज है, और भी कंट्रीज के पास है ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है टू चेंज। अमेंडमेंट का जो मतलब हो गया आपका टू चेंज, ठीक है, बदलाव लाना, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ये है, और भी क्या नाम है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, प्रोविजन है कि आप चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली क्यों है ना, बेस्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों ने एनालाइज किया, पढ़ा लिखा जांचा परखा, उसके बाद जाकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई, जब उसको 2 साल 9 महीना 11 दिन ऐसे कुछ लगभग लगा। तो इतना टाइम लगाने के बाद एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेस्ट क्या नाम है हमारे पास टाइप में एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उसके बावजूद भी हमारे पास एक प्रोविजन दे दिया गया, किसका, अमेंडमेंट का। वजह इसकी ये है कि देखिए मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या नाम है, या कहते हैं ना कि समय के साथ साथ जो है ना चेंजेस आने लगते हैं कंट्रीज में। लाइक एग्जांपल आप देख लीजिए, पहले जो है मोबाइल फोन नहीं था, पहले जो मोबाइल फोन नहीं था तो उसके लिए कोई आर्टिकल्स नहीं थी, कोई चीज नहीं था, लेकिन अब मोबाइल फोन आ गया है तो क्या नाम है साइबर लॉ भी आ गया हमारे पास, ठीक है। साइबर लॉ भी आ गया, उसके अंदर चेंजेस भी किए गए, क्योंकि पहले जो लॉज थे वो रेडियोज और इन सब के मुताबिक थे, लेकिन अब साइबर लॉज आ गए हैं, हैकिंग हो जाती है, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, सारी चीजें हैं। तो वो सारे इसको बदलाव करने के लिए लाइक बहुत सारी चीजें चली आ रही हैं, जैसे कुछ पार्टी रूलिंग पार्टी गई, जो जो पार्टी जीत करके गवर्नमेंट बनाई, उसने देखा कि चलो ये चीज है, ये थोड़ा सा परेशान कर रही है, या फिर जो क्या नाम है तरक्की में ये चीजें जो है रुकावट डाल रही है, रेस्ट्रिक्शंस पैदा कर रही है, तो उस चीज को अमेंड किया गया। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर इसलिए दिया गया है कि जो आगे चल के अगर कोई चीज, कोई आर्टिकल ऐसा आ जाए जो डेवलपमेंट में या किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस पैदा करे गवर्नमेंट को, क्या नाम है इंडिया के पूरे इंडियन डेवलपमेंट के अंदर, तो उस चीज को चेंज कर दिया जाए। आपके पास अमेंडमेंट्स आए हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स आए, और एक और अमेंडमेंट सबसे ज्यादा जो मेन अमेंडमेंट कहा जाता है वो 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जो आया इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, इसीलिए इस 42nd अमेंडमेंट को जो है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे बदलाव लाए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, कुछ चीजें ऐड करी गई थी। आपका जो है प्रियम्बल जो है उसके अंदर आपका सेकुलर है, आपका रिपब्लिक है, जो 2-3 चीजें हैं उसको 42nd अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था, ऐड किया गया था प्रियम्बल के अंदर। तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, वो किसके लिए होते हैं, हमारा जो कंट्री है उसको स्मूथली रन करने के लिए अमेंडमेंट होते हैं, हमारे फायदे के लिए अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है।
चलिए हमारे पास एक और प्रोविजन है, अमेंडमेंट हो गया। हमारा जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 वर्ड है इसके अंदर। सॉवरेन यानी कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आप कह सकते हैं, या इंटरफेयर, यानी कोई जो है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन मेकिंग डिसीजन। डिसीजन अगर आप कोई ले रहे हैं तो उसमें जो है कोई दूसरी कंट्री आपको इंटरफेयर नहीं करेगी कि नहीं आप ये डिसीजन लीजिए, वो जो हम बताएंगे वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सॉवरेन का मतलब ये हो गया कि फ्री टू डिसाइड। फ्री टू डिसाइड जो है वो 2 तरीके का होता है। एक जो है हमारे यहाँ पर पब्लिकली, यानी वी द सिटीजन, हम भी सॉवरेन है, कि हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। एक ये हो गया सॉवरेनिटी का मतलब। दूसरा जो है सॉवरेनिटी का मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री जो है वो सॉवरेन है। हमारा जो क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कंट्री को सॉवरेनिटी देता है कि वो जो चाहे वो डिसाइड कर सकता है, उसको किसी दूसरे देश का जो है इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी दूसरे देश का डोमिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये होता है। लाइक बहुत सारी बाहर की ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें लाइक इराक के अंदर जो है अमेरिकन क्या नाम है इंटरफेरेंस रहता है हमेशा। कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके अंदर अमेरिकन इंटरफेरेंस रहेगा। पहले जो एक और कंट्री आपका चाइल्ड में भी आपने देखा था, क्या नाम है, चाइल्ड के अंदर भी कुछ इंटरफेरेंस रहा इसका, यूएसए का, कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कैसी गवर्नमेंट बनेगी। तो हमारा जो एक सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, जहां पर जो पावर किसके हाथ में होगी, पीपल के हाथ में होगी। तो पीपल के हाथ में होगी तो चूज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का तो मतलब समझिए पावर इन द हैंड ऑफ पीपल। पीपल के हाथ में पावर है टू चूज द गवर्नमेंट, वो जिसको चाहे उसको वोट दे, उनके पास ये पावर है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक ये है कि हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ क्या होता है कि कुछ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, वो जाकर के पार्टी बनाते हैं और पार्टी में जाकर के फिर वो रूल करते हैं। ठीक है, ये है एक हमारा प्रोविजन। अगला हमारे पास है सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री। ओके, सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री, ये जो 2 चीजें हैं बहुत अहम वर्ड है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट क्या बताएगा, सोशलिस्ट का जो मेन मकसद है, रीजन फॉर द सोशलिस्ट, वो इनका मेन जो रीजन कह रहा हूँ, सॉरी, इनका जो मेन मकसद है, एम जो है इनका ये है कि जो क्या नाम है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्या, इनइक्वालिटी इन रिलेशन टू इकोनॉमी, फिनांस। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है उस चीज को खत्म करें। और और एक और इसका एक मोटो ये था कि जो मिनिमम वेजेस हैं, लाइक जो लेबर का जो मिनिमम वेजेस है वो सेट होना चाहिए। तो सोशलिस्ट में ये है कि आपका ये सोशलिस्ट एज ए मैं मार्केट लेवल के हिसाब से कह रहा हूँ। दूसरा एक सोशलिस्ट पॉइंट ये भी होता है कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है वो खत्म होकर के लोग एकजुट हो जाए। ठीक है, ये हो गया सोशलिस्ट का मतलब। सेकुलर कहता है कि आप जो है फ्री टू चूज, या हम इसको देखिए सेकुलर का भी 2 कॉन्सेप्ट है। सेकुलर का एक है इंडियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि जितने भी रिलीजन है और
religion are equal before the law. इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि जितने भी रिलीजन है वो सारे इक्वल हैं इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा हम ये बात कर सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर रिलीजन को क्या करता है, रेस्पेक्ट देता है हर रिलीजन को। लेकिन ब्रिटिश का जो है वो थोड़ा अलग मामला। ब्रिटिश कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिलीजन नहीं है, संविधान का कोई रिलीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रिलीजन। बात एक ही आ गई है। इसीलिए इनके पास जो है रिलीजन को लेकर के कोई चीज है भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक रिलीजन ही की बात हो रही है। फ्री टू चूज, टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, आपको जो रिलीजन है उसको आप चूज कर सकते हैं। जो क्या नाम है रिलीजन है उनके ऊपर कोई जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, रिलीजियस बिल्डिंग्स के ऊपर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन को एक रेस्पेक्ट दिया है और सारे रिलीजन को एक समान देखा है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का कोई महत्व ही सारा खत्म कर दिया है कि नहीं, रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हो गए, इनका कोई वास्ता नहीं आता, ठीक है। तो आपका सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री समझ में आया? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे अलग फीचर्स पे, वो है आपका क्या हो सकता है, फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म, फेडरल कहते हैं बढ़ जाना, यानी लाइक एग्जाम्पल ये आपका जो है क्या नाम है, सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट भी है आपके पास। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, अब इसमें जो है यूएस से अगर हम कंपेयर करें, अगर आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम क्या नाम है यूएस से ही कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि यूएस भी एक फेडरल स्टेट है और हमारा जो इंडिया है वो भी एक फेडरल स्टेट है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो डिफरेंसेस क्या है। देखिए हम फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं यूएसए और इंडिया के बीच में। अगर हम यूएसए को देखें और दूसरी तरफ इंडिया को देखें, यूएसए का थोड़ा सा मामला क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स जो है यूएसए को, वो लोग यूनाइट हो करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, अलग अलग स्टेट। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 पावर होती है, सेंट्रल और यूनियन पावर होती है, एक स्टेटरी पावर होती है, वो तो दोनों के लिए होती है, और एक स्टेट का जो है स्टेट लिस्ट होता है। तो हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज्यादा जो पावर है वो जो है अलग अलग स्टेट्स को दिया गया है। स्टेट्स के पास जो है स्टेट की पावर यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि सेंटर की पावर ज्यादा है, सेंटर की पावर हमारे पास क्या है, ज्यादा है, स्टेट की पावर एज कम्पेयर टू कम है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूएसए में जो है, यूएसए ने क्या किया कि अलग अलग स्टेट बाउंड होकर के तब बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारा जो है क्या है कि स्टेट्स को पावर दिए गए हैं, लेकिन स्टेट्स के लिए जो अगर आप लिस्ट में जाकर के देखें तो सेंट्रल लिस्ट में ज्यादा चीजें मिलेंगी आपको और स्टेट लिस्ट में कम चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर कहीं पर दोनों के बीच में झड़प भी हो जाता है, कुछ कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो दोनों ही काम करेगी तो उसके अंदर बात सुनी जाएगी सेंटर की। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हो जाता है मामला तो स्टेट के पास अपना काम करेगा, उसके अंदर बात कौन सुनेगा, स्टेट बात सुनेगा, ठीक है। तो फेडरलिज्म दोनों का, हमारे इंडिया का और क्या नाम है यूएसए का, थोड़ा सा अलग है, ओके। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। आप पूछिए। सर अभी you had told that in United States of America, in USA, Yeah. states have more power than the central government. Yeah, absolutely. Am I right, sir? हाँ बिल्कुल सही। Sir, if states have more power than central government, then it means that if suppose sir, if central government उसने
एक रूल स्टैब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश ए रूल दैट no one can go to temple, just example. Then in on this सर तो फिर क्या है, इस पे स्टेट्स का अपना होगा कि मतलब इस केस में कोई भी रूल अगर लागू होता है, टेम्पल वाला छोड़िए सर, कोई भी अगर रूल लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि उसको ये बात माननी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनके पास ज्यादा पावर है तो वो नहीं भी मान सकते हैं? बिल्कुल सही। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो ये जरूरी नहीं है यूएसए के स्टेट्स लाइक मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, अलग अलग स्टेट जो भी हो गए, कैलिफोर्निया हो गया, शिकागो हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, तो इन सारे के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि हम उसके कानून को माने या ना माने। इसके अंदर क्या है ना, एक्चुअली में जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्टेट के पास भी एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो वो उनके पास ये प्रोविजन है कि वो उसकी बात को माने भी या छोड़ भी दे, उनके पास बॉन्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि जो कुछ चीजें हैं वो तो स्टेट का अपना काम है, उसके बीच में सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो सेंटर का काम है उसके बीच में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर देखा जाए, दोनों को तुलना किया जाए, तो स्टेट के पास जो है वो कम क्या नाम है पावर दी गई है, और सेंटर के पास ज्यादा पावर दी गई है। ज्यादातर चीजों में कानून जो है वो सेंटर बनाएगी, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट की भी ऐसी चीजें जिनके ऊपर कानून सेंटर बना सकती है, लेकिन और कुछ ऐसी चीजें जैसे कंकरेंट लिस्ट में आ गया लाइक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम आ गया, मेडिकल एंड हेल्थ केयर आ गया, ठीक है, मेडिकल हेल्थ केयर आ गया, डिफेंस आ गया आपका, yes, ठीक है। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सब जो है ना दोनों को मिल करके करना है। एक स्टेट की डिफेंस जो है और एक सेंटर की डिफेंस है। तो सेंटर जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है इंडिया में डिफेंस सिस्टम में, ठीक है, किसी स्टेट को लेकर के। लाइक एग्जांपल, कोई चीज ऐसी हो गई कि जो कहीं पर कोई राइट हो गया, तो स्टेट जो है कहेगी सेंटर को, और सेंटर आकर के अपना काम करेगी, ठीक है। या फिर स्टेट से कोई काम नहीं हो रहा है तो जो सेंटर कहेगी कि आप जो है क्या नाम है उस पर वो इमरजेंसी लगा देगी उस स्टेट पे, और उस पर क्या हो जाएगा, यूनियन का रूल हो जाएगा, यानी सेंटर का रूल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ मामला जो है वो वहां नहीं है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो है अपना क्या नाम है, हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है और अलग पावर होती है। वो चाहे तो माने, वो चाहे तो नहीं माने, लेकिन कुछ चीजें उनके पास भी है। लाइक एग्जाम्पल, डिफेंस का जो सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है वो थोड़ा सा उनको दिया गया है, सेंटर को दिया गया डिफेंस का सिस्टम। लेकिन बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट के पास अपना है। कुछ कुछ चीजें सिर्फ सेंटर को दी गई है। ओवरऑल अगर दोनों में देखा जाए तो यूएसए में स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू सेंटर, और इंडिया में सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट। ओके, गेटिंग द पॉइंट? दोनों के पास होता है, इसके ऊपर दोनों ही काम करेगी, सेंटर और स्टेट। और ये जो है इसके ऊपर सिर्फ स्टेट काम करेगी, इसके बीच में सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और यूनियन लिस्ट के ऊपर जो है वो यूनियन ही काम करेगी, लेकिन इसके अंदर ज्यादा दिए गया है काम, जो है यूनियन के पास ज्यादा है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में बहुत कम ही चीजें दी गई हैं। और कंकरेंट जो दोनों के बीच में आती हैं उनके अंदर ये कहा जाता है कि अगर स्टेट कुछ कह रही हो, सेंटर कुछ कह रही हो, तो किसकी बात सुनी जाए? तो कोर्ट कहती है कि बात सुनी जाएगी सेंटर की, सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट के मुताबिक। समझ में आया? यूनियन लिस्ट जिसके अंदर सेंटर काम करेगी, इनकी अपनी अलग लिस्ट है। स्टेट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट काम करेगी, और आपका जो कंकरेंट लिस्ट है जिसके अंदर दोनों ही मिल करके काम करेंगे। लेकिन अगर कोई इश्यू हो जाता है, कोई क्या नाम है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसके लिए फिर कोर्ट में अगर जाया जाएगा तो वो जो उसको फैसला आएगा वो सेंटर के हक में आएगा कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सेंटर की बात सुनी जाएगी। ओके, गेट द पॉइंट? थैंक यू वेरी मच।